The good takes over the evil, and we have administrators, people who've done immense work for sports in this country, and luckily, most of them are here today. Before we start the event, I would like just a few words of Om to be chanted, which I will start, and I want every player say that for the next 30 seconds. Thank you very much. Now, I will start by calling people who would be here in the dais. When you show these journeys to people, that they feel it's a very, very historic moment. And people in the country wake up today. These are the heroes of the country who can no longer be termed as para, because they are the ones who give us inspiration. And now, no one was not wanting to cover it. But having done programs on the university, they've covered it. Now they want to cover the sports. Having done programs like Be the Change, Mission Made Possible, this all has become possible. Because इनका हक है नाम कमाना, इनका हक है पैसा कमाना, और इनका हक है भारत को नाम there. And the development that you see in Vrindavan Matra is a lot to his credit. And he's also the leader of opposition. I would like him to say a few words. Thank you, Ashim. Yeah, that's right. Thank you, Ashim. I welcome on behalf of Radiant and O, all of you who have taken the country on the proud, and you all guys, I cannot call them to be para. You are more than para, and you have taken the country on the top of the world. I congratulate all of you for such a grand show by which you have taken the name and fame of the country in the world. Ashim Bhai has already planned in a big way to welcome you, and today is the beginning of his this first strike, where he's going to honor all of you, and then Ashim and we all are going to organize World Cup cricket for para cricketers, and it is going to take place in the month of March in the next year, and prelude to it will be celebrating and will be organized in Mathura, the birthplace of Lord Krishna, where he is going to invite all of you to be the witness to that event. Thank you very much. Now I would like Mr. Satyanarayan, please come. Please. Next we बहुत बीमारी, अगर वो कोच ऐसा है कि अगर वो अपनी वाइफ को नहीं करता है, वो आज ब्रॉन्ज नहीं जीतते। गजेंद्र, हम तुम सबको वेलकम करने के लिए कि एथलीट्स को ऑनर तो करना था, वो एक मौका था, बट आजकल जो दिखता है वही दिखता है। अभी तक हम सब लोग की सोच थी क्रिकेटर्स, और मैंने जिंदगी में बहुत क्रिकेट इवेंट्स करे हैं। क्रिकेटर्स के अलावा मेरी एक उस टाइम एक जज्बा था कि मुझे बिलियर्ड्स, गोल्फ, टेनिस को भी उठाना है। जो हुआ, प्लेयर्स इंडिया से निकले, लिएंडर, महेश, बहुत प्लेयर्स निकले, और वो बदौलत थी सर्किट की, रेडिएंट सर्किट की। स्पॉन्सर्स आने शुरू हुए,
सबको टेलीविजन टाइम चाहिए था। जब तक टेलीविजन टाइम नहीं मिलता, कोई भी स्पॉन्सर आपको पूछता नहीं है। हम जितना भी CSR कर ले, बट अल्टीमेटली जब तक ग्लैमर इन्वॉल्व नहीं होता, वैल्यू उसको मिलती नहीं। सोच थी कि इनको न्यूज पे रखना है, इनको अलग ढंग से न्यूज पे रखना है। किसी को उठना था, एंड आई डिसाइडेड विद PCI कि हम लोग ये काम शुरू करेंगे। मेरे को याद है 2017 में हम ओयो होटल में बैठे थे सत्या के साथ, एंड वहां पर बैठ के एक ब्लूप्रिंट बना रहे थे कि 7 साल का कैसे होना चाहिए। कमेंडेबल है जर्नी, कमेंडेबल है PM का सपोर्ट आना, कमेंडेबल है विजिबिलिटी मिलना, और कमेंडेबल है जो आज स्पोर्ट्स में पहली बार भारत में हुआ है। ये खाली सोच है। प्लेयर, बिकॉज आई बीन अ प्लेयर माई सेल्फ, प्लेयर खाली एक ही चीज सोचता है कि मुझे फेडरेशन से क्या मिलता है, मगर जब वो दूसरी तरफ जाता है तो फेडरेशन की प्रॉब्लम्स क्या होती है वो तो नहीं समझता। बिकॉज ही इज इन हाई मोड, हेवी थिंकिंग, तो वो उतना ही सोचता है और सोचता है कि नहीं, दे आर नॉट गुड फॉर मी। बट उनको हेलो भी वो ठीक बोलता है, बट अंदर से उसकी सोच एक गलत होती है कि ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं यहाँ पर आज क्योंकि दोनों मौजूद हैं, एक बात बोलना चाहता हूँ, आई मीन ऑन बोथ साइड्स। मेरे को स्पोर्ट्स छोड़ो बहुत टाइम हुआ है, एंड सब भी प्रोग्राम पे आए हैं, एंड एक एक की सोच देखता हूँ। PCI ने जो किया है आज तक BCCI ने भी नहीं किया, and give them a big hand. So instead of thinking no, they are not doing anything, they are doing what no one has been able to do in the last 70 years in India. BCCI भी एक बार बंद हो रही थी, और जब मैं उनका मार्केटिंग एजेंसी बना था, मुझे याद है when Raj Singh Dogarpur came me, he gave me 4 days to do the Asia Cup, and I got video call. But more than that cricket event, वो जहांगीर खान का इवेंट पॉपुलर हुआ था because ये पाकिस्तान में इंडिया में आ रहा था। So media is not about only cricket. आज जो मीडिया आप लोगों के बारे में लिख रही है और ओलंपिक्स में फ्रंट पेज और स्पोर्ट्स की स्टोरीज मिल रही है, ये पॉसिबल नहीं है। This is gift of God, and a lot of effort has gone from all the federations who have worked to make this happen. आज गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, बट कल तुम लोग ही स्टार्स होगे, तुम लोग ही टेलीविजन पे नजर आओगे, और कल तुम्हारा सब ग्लैमर इन्वॉल्व होगा। मैं तो फिल्मों में भी हूँ, स्पोर्ट्स में भी हूँ, स्पिरिचुअलिटी में भी हूँ, तो मैंने तीनों लोग फर्क देखे। डोंट गेट इनेमर्ड बाय क्रिकेटर्स, डोंट गेट इनेमर्ड बाय फिल्म स्टार्स। They are more shallow than your thinking, because आपकी सोच हीरोइक सोच है, वहां पर सोच है अरे जल्दी गए, पैसा बनाया, थोड़े से एड्स करें, फिर उनकी जिंदगी खत्म। ये जो आज प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है एक सोच की। या तो ये भारत को बना सकती है, या ये भारत को नहीं बना सकती, और वो सोच दोनों तरफ से आएगी, from the federation who thinks of the players and the players who think of the federation. बहुत लोग हैं, और आज मैंने रुपिंदर सिंह को बुलाया है इधर। इनका कंट्रीब्यूशन जब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट शुरू हुई थी तब से लेके आज तक इनका कंट्रीब्यूशन है। इनका कंट्रीब्यूशन कार्ल लुईस को इंडिया बुलाने में है। हम लोग
He was just senior to me in school. I've seen him running on the roads of Delhi, organizing marathons, being part of every big event of IOC. Little has been done for the work that he's put in. He has been with you at the Olympics, and never have you seen him never been motivating to people. I have on my right Mr. JP Singh, जिनको मैं पहली बार एक मौका मिला उनसे बात करने के लिए शो में। हंसी तो इनकी है, पर इनका जज्बा उस ग्राउंड पे खिलाने का इतना जबरदस्त था। So we have people who can take you forward. ये मैं आपको आज बोलता हूँ, ये नाम टेनिस में था, ना टेबल टेनिस में था, ना क्रिकेट में। बट आप लोग बहुत लकी हैं कि आपके पास ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं। और जिंदगी में वही आदमी काम कर सकता है जिसके अंदर जज्बा हो, जो शायद अपनी जिंदगी में प्लेयर ना बन चुका हो। And he says, I will produce players. So जरूरत क्या है? जरूरत है that you have respect for them and they have respect for you. They remain busy, so if they give you 10 minutes of time and get your work done, आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, वीजा करवाना, आपको छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप बोलते हो कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन करा दें। बट कुछ चीजें जब हो जाती है तो हम लोग सोचते हैं ये तो उनका फर्ज है, वो हमारी प्लेयर्स की सोच होती है, वो तो हमारे ऊपर जी रहे हैं। That is not true. वो अगर है तो आप हैं, और वो नहीं होंगे तो कोई सपोर्ट नहीं है। Because you can keep on running after the government offices, nothing will happen. आज हम बात करेंगे ये प्लेयर्स की जर्नी की, उनकी ज़बानी बात करेंगे। One more chair, please, Rupinder sir. You have to be on the stage, sir. Please. मैं अपनी जिंदगी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मुझे जून 2012 में एक हादसा हुआ था। मैं स्विमिंग करने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और वहाँ पे पानी कम होने की वजह से ऑन द स्पॉट मुझे इंजरी हो गई थी। तो जब एक चलता फिरता इंसान बेड पर आ जाता है तो चारों तरफ से नेगेटिविटी घेर देती है, और एक बार तो ऐसा लग रहा था जैसे अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है और जीने का कोई फायदा नहीं है, मर जाना इससे अच्छा है। तो कुछ टाइम ऐसे ही निकलता रहा और 2013 के लास्ट में किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू में मेरी मुलाकात अमित सोलवाजी से हुई और वो उस टाइम पे एक बड़ा नाम थे। 2012 लंदन ओलंपिक पैरालंपिक में वो पार्टिसिपेट करके आए थे। तो उससे पहले अगर मुझे कोई बोलता था कि भाई आप गेम कर सकते हो, ऐसे ऐसे पैरालंपिक्स में के गेम होते हैं, तो मुझे लगता था कि एक इंसान जो बेड से खड़ा हो गया एक गिलास पानी नहीं ले सकता, वो क्या गेम करेगा। तो अच्छा मैं उनसे मिला और उनकी इंजरी और मेरी इंजरी बिल्कुल एक सेम थी, तो इसलिए मुझे वहीं से बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिला, नहीं कर सकता। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और 2015 में मैंने पहला नेशनल गेम खेला, जहाँ मेरे 2 ब्रोंज मेडल आए थे और तब से लेकर आज 2024 में पैरालंपिक्स में गोल्ड आया है। तो ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 1-2 दिन की मेहनत है, ये 10-12 साल की मेहनत है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम योगेश कतुनिया, मैं डबल पैरालंपिक मेडलिस्ट हूँ। जर्नी की तो मैं अगर बताऊँ तो मेरे को गुलियन-बार सिंड्रोम हो गया था, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर 2006 में। तो उस टाइम पे 9 साल का था, तो तब से बीमारी थी। तो 3 साल में व्हील चेयर पे भी रह चुका हूँ। तो 2009 में मैंने उठना शुरू करा था। तो जैसे एक बच्चा जब उठता है तो वैसे ही मेरी जर्नी वापस से 2009 में स्टार्ट हुई थी।
तो मेरे सीनियर हुआ करते थे सचिन यादव जी, जनरल सेक्रेटरी थे वो कॉलेज के। तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके पैरा स्पोर्ट्स होता है, तो भी ट्राई कर, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा स्टार्टिंग से ही स्टडीज में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, और उस टाइम में मैं सीए भी कर रहा था। मैंने सीपीटी और आईपीसीसी ग्रुप ए पूरा क्लियर कर दिया था अपना, और ग्रुप डी की तरफ भी पढ़ रहा था। तब उन्होंने बताया तो मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। तो उसके बाद मैंने अपनी वहाँ से प्रोफेशनली स्टार्ट करा स्पोर्ट्स करना, साथ में पढ़ाई भी करता था, कॉलेज भी जाता था और स्पोर्ट्स भी करता था, तो दोनों चीज़ें मैनेज करी। और पढ़ाई का शौक तो मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैं अभी भी पढ़ता ही हूँ। फिर वहाँ से धीरे धीरे करके जब जर्नी स्टार्ट हुई तो मेरा पहला डेब्यू था इंटरनेशनल का एशियन गेम्स का, तो वहाँ पर मैं 4th आया था एशियन गेम्स में। तो वो जब 4th आया तो उसके बाद थोड़ा लगा कि यार अभी तो बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है, तो 2019 में मेरा फिर ब्रॉन्ज मेडल आया वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर वहाँ से क्वालिफाई किया टोक्यो पैरालंपिक्स में, वहाँ पर सिल्वर मेडल आया। अभी भी सिल्वर ही आया, जिंदगी चांदी हो गई चल रही है। मेरे को लगता है भगवान चांदी ज़्यादा पसंद करते। मैं सोच रहा सोना कम मिले, लेकिन भगवान हमेशा चांदी भर रहा जोली में। लेकिन चलो कोई नहीं, धीरे धीरे करके अभी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और ज़्यादा मेहनत करूँगा। और जो जर्नी थी पेरिस पैरालंपिक्स की बहुत अच्छी थी। सबसे अच्छा वहाँ पर सिर्फ मुझे एक चीज़ देखने को मिला था जो इंडिया में नहीं मिलता। वहाँ लोग बहुत ज़्यादा पैरा स्पोर्ट्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अगर आप देखोगे ओलंपिक्स से ज़्यादा तो पैरा स्पोर्ट्स को ज़्यादा फॉलो करते थे। और मैं देख रहा था वहाँ ना टिकटें भी ब्लैक में बिक रही थी। तो जो चीज़ें यहाँ इंडिया में सिर्फ क्रिकेट के लिए होती थी, वहाँ वो फ्रांस में पैरा स्पोर्ट्स के लिए हो रहा था। तो वो चीज़ देख के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक ऑडियंस ही है जो एक खिलाड़ी का जो मनोबल बढ़ाती है। नमस्ते सभी को। मेरे बारे में सब जानते हैं कि उसने मुझे कैसे सपोर्ट किया है या क्या किया है। मुझे लगता है ये एक उदाहरण है कि हस्बैंड कैसे होने चाहिए। दोस्तों के बारे में, अपनी फेडरेशन के बारे में, इन सब के बारे में बताना चाहूँगी। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में गई थी। मैं वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक से क्वालिफाई करके वर्ल्ड चैंपियनशिप में गई थी, और मुझे वहाँ पे जाने के बाद मेरा मसल टूट गया था। 5 सेंटीमीटर का गैप था जिसमें, और उसके 3 महीने बाद जस्ट एशियन गेम्स थे। उस इंजरी होने से ज्यादा दुख ये था कि मैं अब एशियन गेम कैसे जाऊंगी, क्योंकि मैं इस चीज की तैयारी 5 साल से कर रही हूँ, क्योंकि एशियन गेम में 1 साल आगे बढ़ा था। मुझे कुछ भी करके एशियन गेम खेलने जाना है, और मैंने बहुत मेहनत करी है इस चीज के लिए। तो वहाँ पे मेरी फेडरेशन थी, शायद कोई और होता उनकी जगह तो मेरा गेम वहाँ पे क्लोज हो जाता, क्योंकि वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोड़ था। या तो मैं ऊपर चली जाती या मैं बिल्कुल नीचे गिर जाती। तो वहाँ पे ये एक फेडरेशन थी मेरे स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उठाया कि अरे हम है ना, तुम कैसे रुक गई। तो ये मेरी फेडरेशन का, मेरे स्पॉन्सर्स का और मेरे दोस्तों का रोल था। और सबसे बड़ा रोल, जब मैं भी पेरिस पैरालंपिक में गई तो मेरा 100 मीटर में मैं मेडल आउट हो गई, और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी थी। मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती, मैं ग्राउंड पे उसके लिए कितना मरी हूँ उस मेडल के लिए। वहाँ से मेडल आउट हो गई, और मैं उस टाइम पे इतना टूट गई थी कि वहाँ पे सब लोग थे मेरे साथ। सतपाल सर थे, सत्यनारायण सर थे, पूरी फेडरेशन थी, चीफ कोच थे सर वहाँ पे। तो हमेशा सर भी साथ ही रहते थे उस टाइम पे। तो जब मैं 100 मीटर के फाइनल से वापस आई थी तो मेरी हालत, मुझे लगता है शायद इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। इन सब लोगों ने देखी थी वहाँ पे मेरी हालत, कि अगर मैं शायद अकेले हो जाती तो मैं सुसाइड भी कर देती, जो मेरी हालत थी। एक सपना टूटा था। नमस्ते सभी को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आर्मी से हूँ। सो आई एम ए सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी, और 15 साल मेरी सर्विस हो चुकी है। तो मेरा एक ही उसूल है, डिसिप्लिन की वजह से ही मैं आज आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ। मैं एक मामूली सा सोल्जर था, जो मुझे सत्या सर ठाके उठाके इसमें लेकर आए थे। तो मुझे उठा के पैरा का कोच बना दिया गया, और मुझे चैलेंज बहुत पसंद है। अगर कोई चैलेंज कर सकता है ना सामने, तू करवा ले भाई, तो मैं उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाऊंगा। मेरा मानना यह है, जितनी किसी मछली को पानी से बाहर निकाल के पानी की जरूरत पड़ती है ना, उतनी ही मुझे उस टाइम पे कामयाबी की जरूरत थी अपने, बिकॉज आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए 8 साल लगे यहाँ तक पहुंचने के लिए। आज मेरे पास एशियन गेम्स के 2 मेडल है, सिल्वर, और वर्ल्ड चैंपियनशिप का 1
गोल्ड मेडल है, 2 ब्रॉन्ज मेडल है और पैरालंपिक के 3 ब्रॉन्ज मेडल है मेरे पास आज की डेट में। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब कुछ जो पॉसिबल हो पाया है, ये है जो आपके आसपास जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है ना, ये उसकी वजह से हो पाया है। हमारे आसपास कितने लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की तरह होते हैं, आपको दिखेगा नहीं, वो आपके लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन आप उनको कभी महसूस नहीं कर पाओगे। तो ऐसे लोगों को आप पहचानिए, उनकी इज्जत करिए, वो आपके लिए भगवान ही है। तो आपकी जिंदगी में भगवान का रोल अदा कर रहे हैं। और जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनसे आप दूरी बनाइए। चाहे आपके घर का ना हो कोई बंदा, उसको समझाओ पहले आप, अगर नहीं समझ रहा तो उससे दूरी बनाओ, बिकॉज आपका कैरियर वहां पे थोड़ा सा डामाडोल होना है आगे आने वाले टाइम में। आप पॉजिटिव माहौल में रहें, पॉजिटिव सोचें। इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। ऑलवेज रिमेंबर दैट योर प्रेजेंट सिचुएशन इज योर फाइनल डेस्टिनेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। तो विश्वास रखें अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, और कभी अपने ऊपर संदेह ना करें। आप ही वो हो जो खुद को बदल सकते हो, आपके अलावा आपको कोई दूसरा नहीं बदल सकता है। Before I come to the administrators, एक ऐसी लड़की थी जो ओलंपिक्स जा रही थी, हम लोग शूट कर रहे थे प्रोग्राम बी द चेंज के लिए। वो लड़की आई और आस्था में बह गई, और उसको सिमरन को भी हमने 6 दिन पहले एक मैसेज दिया था ओलंपिक्स में कि सिमरन तुम्हारा मेडल आएगा, मैसेजेस देयर। एक दूसरी लड़की थी जिसको मैसेज दिया था कि आई कैन सी कि आपका मेडल आएगा, और वो थी मोना अग्रवाल। तीसरे को मैसेज दिया था 4 दिन पहले कि यू विल डू वेल, एंड वो लड़की थी सामने बैठी है हमारे। एंड आई वुड लाइक कि आप अपनी जर्नी इस तरफ फेस करके प्लीज सबको सुनाएं। मैं सबसे पहले तो शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं अपनी जर्नी ये बताऊंगी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2008 में, तब से मेरा एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। स्ट्रगल सभी की लाइफ में होते हैं। मेरा 2008 से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, जब मुझे एक स्पाइनल इंजरी हुई थी, और स्पाइनल इंजरी बहुत ही डेंजरस होती है। वो स्पाइनल के जिस लेवल पे लग जाती है, उससे नीचे की बॉडी बिल्कुल डेड हो जाती है। तो मुझे स्पाइनल इंजरी काफ़ी हाई लेवल पे हुई थी, और मैं कई सालों तक डिप्रेशन में रही थी। और इस डिप्रेशन से मैं तब बाहर आई थी जब मैंने अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट किया। मैंने मुझे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, भागवत महापुराण, शिव महापुराण, देवी महापुराण। तब वहाँ से मैं जो उस डिप्रेशन से बाहर आई, और मैंने कुछ सोशल मीडिया पे पैरा स्पोर्ट्स की वीडियो देखी थी, और देखा था कि व्हील चेयर में बैठ के एथलीट्स खेल रहे हैं, तो बड़ा स्ट्रेंज लगा था। पर वहाँ से मुझे एक होप नजर आई थी कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। वहाँ से मेरी स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट हुई थी, और मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी नाहर सिंह स्टेडियम में। मिस्टर नरसी राम सर हैं, मेरे कोच हैं, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। और 2017 में मैंने पहला नेशनल खेला था, और बहुत गर्व होता है बताती हूँ कि मैं नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ डिस्कस थ्रो में। मैंने एशियन खेला, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला, और अभी रिसेंटली पैरालंपिक गेम खेल के आई। तो इस जर्नी में बहुत से स्ट्रगल आए थे, और सबसे बड़ा जो स्ट्रगल मेरी लाइफ में आया था जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। सोच तो लिया था कि कुछ करना है, पर कैसे करना है, क्योंकि एक व्हीलचेयर यूजर होने की वजह से मैं खुद से स्टेडियम नहीं जा पाती थी ट्रेनिंग करने। तो मेरे ब्रदर ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है व्हीलचेयर यूजर के लिए खुद से स्टेडियम जाना और ट्रेनिंग करना। तो मेरे भैया मुझे स्टेडियम लेके जाते थे, ट्रेनिंग करवाते थे। और जो बहुत बड़ा स्ट्रगल था वो ये था कि मेरे भैया जब मुझे ट्रेनिंग कराते थे, उनका मेडिकल स्टोर था, वो बंद करके आते थे, तो बहुत ही शॉप को भैया के बिजनेस में बहुत लॉस होता था। तो भैया ने कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं, अपनी शॉप बिल्कुल बंद कर दी, और ऐसा काम स्टार्ट किया जिसमें वो मुझे भी टाइम दे पाए और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर पाए। तो उन्होंने चलता फिरता बिजनेस, अपनी शॉप बिल्कुल बंद कर दी थी। और बताना चाहूँगी, जब आप सभी को ये मैसेज दूंगी कि जब भी आप लाइफ में अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं
तो एक जुनून के साथ करें, तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। मैंने भी उस जुनून के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और तभी आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं एक पैरालंपियन हूँ। और इस जर्नी में बहुत लोगों का सपोर्ट रहा था। सबसे बड़ा सपोर्ट तो हमारी फेडरेशन का था, जिनके सपोर्ट के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हमारी फेडरेशन के ऑफिशियल्स यहाँ पे हैं, सत्या सर हैं, सतपाल सर हैं, सामन सर हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सपोर्ट किया। सत्य प्रकाश सामवान, वाइस प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। और मेरे लिए सबसे गर्व की बात जो पेरिस 2024 का मैं शेफ के मिशन था। आर्मी में एक कहावत है कि लड़की फौजे हैं, नाम जनरल का होता है, क्योंकि एज ए चीफ होने के बावजूद मेरे पास जितनी प्लेयरों ने, हमारे जितने प्लेयर थे, हमारे कोचिज थे, जितनी सपोर्टिंग स्टाफ था, फिजियो थे, सब ने इतनी मेहनत की कि हमने कहा था इतिहास बना के आएंगे। और एक बार तो मैंने इंटरव्यू जब एयरपोर्ट पे दिया तो हमने कहा T20 के आएंगे, तो उन्होंने कहा क्या T20 क्रिकेट भी है? मैंने कहा नहीं, टॉप 20 में आएंगे। और 170 कंट्रीज में हमारा 18वां रैंक रहा। जो हमने कहा वो हुआ। हमारे चीफ कोच सत्यनारायण जी कहते थे कि आप, मैं 30 मेडल बोलता था, कह 25 से ऊपर नहीं आने चाहिए, 25 और 30 के बीच आएंगे। तो मैंने एक दिन कहा कि देखो जी, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि 28 मेडल से कम नहीं होंगे, और 29 मेडल लेके आए। इसमें हमारे प्लेयर्स की, सबकी, आप लोगों के सबका, जिन्होंने भी, जितने फाउंडेशन ने जितने प्लेयर का किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरी रिक्वेस्ट गजेंद्र जी से है कि इनका नाम हाई कोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट लेके आने, तो गोल्ड मेडल लेके आएगी। इन्होंने पहले हाई कोर्ट रख दिया, इसको सुप्रीम कोर्ट नाम होना चाहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी पैरालंपिक जर्नी 2018 में स्टार्ट की थी। जब मैं पैरालंपिक्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, कैसे खेला जाता है और इसके गेम्स कैसे होते हैं। मैंने हमेशा पैरालंपिक की जर्नी से पहले नॉर्मल में कम्पीट किया था, जो कि जिसमें मैं CPSE क्लस्टर्स जो कि स्कूल गेम में होते हैं, वहाँ पर मैं नॉर्मल में कम्पीट करता था। और मैंने CPSE नेशनल में गोल्ड लिया हुआ है नॉर्मल में कम्पीट करके। उसके बाद जब मैं डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन खेल रहा था एबल बॉडीज का, वो नोएडा में हो रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक सर मिले थे, अशोक सैनी सर, जिन्होंने मुझे मेरे कोच सतपाल सिंह जी का नंबर दिया था और उनसे मिलवाया था कि आप उनसे जाके मिलें। पैरा स्पोर्ट्स भी होता है जिसमें आपके जैसे बच्चे कम्पीट करते हैं। तो मुझे कोई एक आदत थी कि जैसे मुझे कोई नई चीज़ पता चलती थी तो मैं उसके बारे में जानने के लिए ज़्यादा ही हो जाता था। और फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे देखा, तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ कि मैंने बहुत सारे एथलीट्स को कम्पीट करते हुए देखा अपने कॉम्पिटिशन में। जैसे व्हील चेयर असिस्टेंट, वो अपना कम्पीट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं अपने इवेंट्स में। जो ब्लाइंड एथलीट हैं वो अपना गाइड रन लेके और फिर कम्पीट कर रहे हैं रनिंग में, डिस्कस थ्रो में। तो मैं वहाँ से बहुत मतलब इंस्पायर हो गया कि मैं भी कर सकता हूँ, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो फिर मेरे को आज भी डेट याद है, 26 अगस्त 2018 इवनिंग में 5 बजे हुए थे शाम को, जब मैं अपने कोच डॉक्टर सतपाल सिंह जी से मिला था। और उस टाइम पे मैंने सर ने मेरे से पूछा था कि आप क्या करते हो। मैंने बोला था सर मैं हाई जंप करता हूँ। जब सर ने मुझे पूछा कि आप हाई जंप करते हो तो ट्रायल कब लोगे, कि जब सर आप जब बोलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो फिर सर ने बोला चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो 5:30 का राउंड उन्होंने बार वगैरह ला के तैयार कर ली थी। तो मैं पूरा तैयारी के साथ आया था कि मुझे ट्रायल भी देना पड़ सकता है। तो फिर मैंने वहाँ पे जंप की तो 180-185 जंप हुई थी। फिर सर ने मुझे जंप वहाँ पे बंद करवा दी थी कि नहीं आप जंप नहीं करेंगे। उसके बाद सर ने मेरा सब अपने पास ही रख लिया था कि तेरा इक्विपमेंट, तेरे रहने का और तेरी जो भी चीज़ें हैं, या तुझे कुछ भी चीज़ की ज़रूरत स्पोर्ट्स में या पढ़ाई में किसी में ज़रूरत पड़े तो उस चीज़ का ध्यान मैं रखूँगा। और आज हमें साथ में 6 साल हो चुके हैं और आज तक मेरे कोच ही मेरा ध्यान रखते हुए आ रहे हैं हर एक चीज़ में, चाहे वो पैरालंपिक कमेटी का अपनी
उसका कोई वर्क हो या अपनी गवर्नमेंट का सहाय का कोई वर्क हो, चाहे मुझे अपना नाडा का फॉर्म भरना हो, आज भी वही करते हैं। और एक सिचुएशन मेरे साथ ऐसी बनी थी जहाँ पे मैं अपना गेम क्विट करने वाला था 2019 में, जब मेरा पहला गेम था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप स्विट्जरलैंड, जिसमें मेरी क्लासिफिकेशन चेंज हो गई थी। मेरी T42 कैटेगरी में गया था मैं, जो 2018 में एशियन बुक्स के रूल बुक्स में चेंज हुआ था, जिसकी वजह से वो T44 कैटेगरी में मेरे को डाला गया था। तो उस टाइम पे T42 कैटेगरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड 1.95 मीटर था। तो हमारी प्लानिंग्स ये थी कि हम अपना 180-190 तक अपना इजली ले जाएंगे, तो हम T42 कैटेगरी में प्लान कर रहे थे। लेकिन आप जब एक रास्ते पे चल रहे होते हो, आपको पता है कि इस रास्ते पर वो मिलेगा, जब आप पहुंचने वाले होते हो तब आपसे बोला जाए कि आप गलत आ गए हो, ये आपका रास्ता नहीं, आप दूसरे रास्ते पे जाइए। फिर आपको बैक आके फिर आपको दूसरा रास्ता चूज करना है, जो कि बहुत लंबा है, हार्ड है। वैसा मेरे साथ हुआ था। तो उस टाइम पे जब मुझे जैसे दोपहर में मेरे को कैटेगरी मिली थी कि आपकी T44 कैटेगरी होगी है, अब मैंने तुरंत सर्च किया, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो कि अभी भी है 2.19 मीटर। और जब मैंने देखा कि यार अब इसको करना मतलब ये तो अपना 25 सेंटीमीटर अपने को गेन करना है, कैसे बढ़ाएंगे इसको, तो फिर मैंने अपने माइंड से फाइट कर दिया था कि अब नहीं, बस अपना गांव जाएंगे, अपना कुछ और कर लेंगे। फिर मैं जैसे वहाँ से निकला, सर साथ में थे, तो सर ने मेरा चेहरा देखा तो सर को मतलब महसूस तो हो गया था उन्हें कि परेशान है, थोड़ा माइंड में इसकी प्रॉब्लम चल रही है, नेगेटिव थॉट चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब मैं घर से वहाँ से वापस आया स्विट्जरलैंड से, तो मैं 3 महीने तक दिल्ली आया ही नहीं था। 3 महीने के लिए मैंने स्पोर्ट्स नहीं किया, मैं अपना बस गांव में जाके बस ये सोच रहा था कि अब क्या करना है, अब कौन सी चीज़ मेरे में अच्छी है जिसको मैं आगे ले जा सकता हूँ, जिससे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी माइंड में। और सर के कंटिन्यूसली 3 मंथ तक कॉल आते थे डेली, मैं कॉल नहीं उठाता था, बीच में कभी मैं 2-3 दिन बाद उठा लिया। तो फैमिली के पास डेली कॉल आते थे कि आप उसको भेजिए, स्पोर्ट्स स्टार्ट करना है, हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है सीनियर की। तो मैं अंदर से उस टाइम पर टूट चुका था। फिर मुझे फैमिली ने सपोर्ट किया कि बेटा एक बार जाके देख ले, सर की कॉल आ रही है। मैंने अपना 6-7 मंथ अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप ली थी, तो अपने 5-6 महीने मिले थे उसमें ट्रेनिंग की। उसके बाद मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4th था, जिसमें मेरे को ओलंपिक कोटा मिला था, टोक्यो पैरालंपिक्स का 2020 का। जिसके बाद मैं थोड़ा मोटिवेट हो गया था कि मैंने अपना पैरालंपिक कोटा लिया है, तो शायद मेडल भी आ सकता है अगर मैं पैरालंपिक कोटा तक पहुंच गया। उसके बाद फिर मेरा मैं 1 ईयर मिल गया था, और जब कोविड आ गया तो उसकी वजह से पोस्टपोन भी हो गया था। 2021 में हुआ था पैरालंपिक्स, तो अपने को टाइम भी काफ़ी मिल चुका था। उसके बाद मैंने टोक्यो में मेरा सिल्वर मेडल। उसके बाद एशियन गेम्स में मेरा अभी तक गोल्ड है विद एशियन रिकॉर्ड, और अभी पेरिस पैरालंपिक में मेरा गोल्ड है विद एशियन रिकॉर्ड। सुंदर, तुम अपनी कहानी 5 मिनट में अपनी जुबान में। सभी के लिए मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जो हमारे कोचेज हैं, हमारे गुरु हैं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके चरण में स्पर्श करना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से आज हम सारे प्लेयर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। औसम सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे प्लेयर्सों का इतना आपने बुला करके सम्मान कर रहे हैं। मेरी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ तो इन सबसे हटके है मेरी जर्नी। मैं 2008 की बात है, तब मैं 8वीं क्लास में फेल हो गया था। तो 8वीं क्लास में फेल होने के बाद मेरे पापा मुझे मार रहे थे। तो 2008 के ओलंपिक्स पैरालंपिक्स जब चल रहे थे, तो उस टाइम सुशील कुमार पहलवान और इनके मेडल आए थे, विजेंद्र सिंह बॉक्सर, अभिनव बिंद्रा। तो मैं वो टीवी पे देख रहा था, तो मजाक में पापा तो चले गए थे, तो मम्मी को बोल रहा था कि मैं तो एक दिन ओलंपिक में मेडल लाऊंगा, मुझे पढ़ाई तो करना नहीं है। और हुआ, हमारे वहाँ पे कोई खेल को जानता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बन गया खिलाड़ी, ऐसे ही बन जाते हैं क्या खिलाड़ी। तो मैं घर से तो स्कूल चला जाता था, लेकिन रास्ते में कहीं मैं रुक करके स्कूल जाता नहीं था। और पूरे दिन
अब हमारा गोला भी नहीं था तो मैं पत्थर फेंकता रहता था। उसके बाद में हमारे स्कूली नेशनल हुए थे तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था केरल के अंदर। तो फिर उसके बाद मैं जयपुर हॉस्टल ट्रायल देने आया था, जो हमारे राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल हॉस्टल चलाते खेल छात्रावास, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। जिस टाइम कोच हुआ करते थे अपने महावीर प्रसाद सैनी जी, जिनको पिछली बार द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला, तो उन्होंने मेरा हॉस्टल में एडमिशन लिया। वहाँ से मैं शॉर्टपुट करता था और उन्होंने मेरा जेवलिन इवेंट स्टार्ट किया। तो मैं एवर बॉडी में पहले खेलता था, तो मेरे नेशनल में मेडल थे अंडर 14 में, अंडर 16 में, अंडर 19 में, और इंडिया कैंप में भी मैं रहा था साल। नीरज चोपड़ा के साथ साथ ही रहे थे। लेकिन 2015 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। जो मेरा टारगेट था आर्मी में लगने का था, तो वो सब कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद में 2016 पैरालंपिक्स के अंदर हम खेलने गए थे। महावीर सैनी जी थे, अपने सत्या साहब भी थे, शिवपाल साहब भी थे। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ वर्ल्ड में पहले नंबर पर था। लेकिन पैरालंपिक्स खेलने हम जब गए थे तो वहाँ पे जो कॉल रूम होता है उसके अंदर मैं 52 सेकंड लेट होने के कारण कॉल रूम से मैं आउट कर दिया था, गेम से आउट हो गया था। तो उस टाइम मेरे को लगा था कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। उस टाइम सत्या घोष साहब, अपने PCI के जितने भी सतपाल घोष साहब ने, उन्होंने काफ़ी कोशिश भी किया था खिलाने के लिए, लेकिन वहाँ एक्सेप्ट नहीं हो पाया और उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मैं काफ़ी नर्वस हो गया। फिर मैंने 3-4 महीने तो गेम ही नहीं किया, घर पे जाके रात भर रोता रहता और सारे बार वो मेरा सीन चलता रहता था पैरालंपिक्स का, मैं रोता ही रहता था। लेकिन वापस महावीर जी को सामने सपोर्ट किया और मैं 2017 में वर्ल्ड चैंपियन बना, लंदन वर्ल्ड चैंपियन बना। तो मेरे को मोटिवेट हुआ कि मैं दोबारा करूँगा। उसके बाद मैं 2018 एशियन गेम्स में 2 मेडल जीते। मेरे को पता है कि इधर जितने बैठे हैं इसमें एक आदमी बड़ा मायूस बैठा है, वो सोच रहा है कि उसका फ्यूचर क्या है, मगर हम सब उसको बहुत प्यार करते हैं और वो भी एथलीट्स को बहुत प्यार करता है। वो मेरे सामने बैठा है, नीरज यादव। इनके लिए बहुत बड़ा गिव हिम अ बिग हैंड। ऑफ डिटर्मिनेशन एंड हमेशा सबको इससे प्रोत्साहित भी किया है। ये नहीं जानते, बट मैं इनको तब से जानता हूँ जब DLTA में ये टेनिस खेलते थे, व्हील चेयर टेनिस, और आज एशियन मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है। इनका जो कैटेगरी है ओलंपिक्स में आई नहीं, बट he is determined कि I'm going to win the world championship और मेरी कैटेगरी आएगी। जो होप होती है, sportsman doesn't give up, and we are all very fond of him. नीरज, कुछ शब्द। मैं सबको नमस्कार करता हूँ और मैं सभी कोचों को भी नमस्कार करता हूँ और स्पेशली उन कोचों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ तक कि जो मेरी जर्नी है उनके साथ जैसी भी रही, जो भी रही, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हर एक खिलाड़ी के जीवन में उतार और चढ़ाव लगा ही रहता है। आज मैं उस सिचुएशन में हूँ कि मैं आप लोगों को बोल भी नहीं सकता। वैसे जितने भी मेरे खिलाड़ी हैं सबको मेरी सिचुएशन का पता है कि मैंने अपने एशियन गेम में 2 गोल्ड मेडल लिए थे, लेकिन किसी कारणवश वो मेरे जो मेडल हैं वो अभी उन पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि उस क्वेश्चन मार्क को कभी क्वेश्चन मार्क मत समझे। उस क्वेश्चन मार्क में आपके लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी चीज है। आप कभी हार नहीं मानो और अपने जीवन को चलाते रहें और हमेशा खुश रहें, कभी डिमोटिवेट ना रहें। मैं सिर्फ अपनी फेडरेशन को यही बोलना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी फेडरेशन ने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा और वो हमेशा मेरे साथ हैं। और जो मेरे कलीग्स हैं, मैं जब मेरे साथ ये सिचुएशन हुई थी तो उस वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि मेरे जीवन खत्म हो गया है, मैं सुसाइड कर लूं। मैंने कोशिश भी करी लेकिन मैं उस कोशिश में कामयाब नहीं हुआ। मेरे साथ जो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट करा और मेरे जो कलीग्स हैं सिमरन और गज्जू भैया, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा। तो मैं बस आपको यही बोलना चाहूंगा कि कभी डिमोटिवेट ना हो। मैं एक बार के लिए डिमोटिवेट हुआ था, लेकिन इस वक्त मेरे अंदर इतना जज्बा है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे जो मेरा गोल्ड मेडल है, जो गोल, उसको मैं पाकर रहूं। हम खाली एक ही बात बोलना चाहते हैं
आप कल सब लोग हमारे साथ शिरडी जा रहे हो और आज ही मैं खाली बताना चाहूँगा सबको कि परसों बाबा का साईं बाबा का महासमाधि दिवस है और वो जो आदमी बैठे हैं पटका पहन के, इनने सब ऑर्गेनाइज किया है और पूरी शिरडी में इतने होर्डिंग्स लगे हैं जहाँ पर आपकी फोटो भी लगी है हमारी फोटो के साथ। आपको वो पौधा दिया है कि आप मशाल जो उठेंगी परसों वो आप हमारे साथ उठाएंगे। So whenever there is disappointment, there is always an appointment with God. Just remember that. And उदास मत होना। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रणव सुब्बा है। मैं सबसे पहले दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन का, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और हमेशा एक ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में हमें भेदभाव देखने को मिला था एक वक्त पे, तो उस इंक्लूसिवनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इट वाज जस्ट अ नॉर्मल डे फॉर मी। आई जस्ट वेंट इनटू 11th स्टैंडर्ड एंड आई वाज प्लेइंग Xbox with my cousin and we decided to collect CDs from one of my friend's house, and when I was walking down the stairs, a cemented shed which was 12 feet long, it fell on my head और मेरे साथ एक गाड़ी भी खड़ी थी, वो पूरी फट चुकी थी। लकीली सुबह 16 वर्ष का था उस टाइम पे, बाइक पे कोई बैठ तो हेलमेट नहीं पहनता, मैंने पता नहीं कैसे सीढ़ियाँ उतरती हेलमेट पहन लिया था और हेलमेट पूरा चूर चूर हो गया, तो उसको उतारने की जरूरत नहीं बची थी, शायद उसी की वजह से मेरी जान बच गई थी। और जैसे ही सब आसपास के लोग भाग के आए तो जो सबसे पहला शब्द मैंने बोला था, मैंने कहा था कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। मेरे गर्दन नीचे पूरी सेंसेशन पावर जा चुकी थी और मैं ठीक से उस वक्त बोल भी नहीं पा रहा था। तो जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो मैं पूरे रास्ते एम्बुलेंस में यही सोचते रहा कि मैं बस किसी तरह बच जाऊं, मेरी सांसें चलती रहे, क्योंकि मैंने देखा है हम छोटी छोटी बातों पे हार मान जाते हैं, हमें लगता है कि जिंदगी बेकार है और जीने का कोई मकसद नहीं है। बट जब आप डेथ को इतनी क्लोजली देखते हो तब आपको पता लगता है कि नहीं, मुझे एक और मौका मिल जाए जिंदगी जीने का और मैं इसे जरूर बदलूंगा। तो उस टाइम पे जब मैं 11th में था तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि आप या तो फिर स्पेशल स्कूल ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप 1 साल स्किप कर लीजिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं जिस स्कूल में था उसी में जाऊंगा और इस साल ही ज्वाइन करूंगा। So I joined my school there। 11th में अच्छा स्कोर किया मैंने, 12th में 95% स्कोर करी मैंने। I was very much academics oriented at that time। I always have been a sports enthusiast in my school days, but I never saw it as a career profession because my family doesn't belong to a sports background। So after that I got admission in Shri Ram College of Commerce, SRCC, Delhi University। But because of my medical expenses, our financial condition was so constrained that we couldn't afford the daily petrol from my home to the college, so I dropped out of it and I did it from Open School, Delhi University। And my father left his job at that time to support me at my home. My mother was working, she supported our family financially, and then in 2016 I decided no, I will join some college and I will do regular college, because for 3 years I think I missed out on a lot। I was doing CA, I cleared IPCC both groups at that time, but जो college लाइफ थी वो मिसिंग थी उस वक्त। तो मैंने दोबारा से SRCC में एडमिशन लिया, बट उस वक्त मेरा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी एडमिशन हो गया मास्टर्स में। सो आई जॉइन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स to complete my masters। When I did my masters in 2018, I was in last semester, so I came to know what para sports। कंचन दीदी आए, उनके थ्रू मेरे पापा को पता लगा कि पैरा स्पोर्ट्स होता है और जैसे मैं व्हील चेयर पर हूँ मैं भी खेल सकता हूँ और देश को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो इन 18-19 मैंने स्टार्टेड स्पोर्ट्स। मेरी उस वक्त तब कोच नरसी सर थे, तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दी और सबसे पहली अच्छी गाइडेंस मुझे सत्य सर के थ्रू मिली। उन्होंने बोला कि कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, आपको पेशेंस रखनी है, आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में, आप बस मेहनत करते रहिए। तो जो स्टार्ट है वो मैं सत्य सर को हमेशा थैंक्स देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे तो करा और भी कितने खिलाड़ी को जानता हूँ जिसकी ज़िंदगी उन्होंने बनाई है। शायद लोगों को ये स्टोरी नहीं पता, बट उनका बहुत बड़ा रोल रहा है खिलाड़ियों को बनाने में। तो उसके बाद 2019 में मैंने जब अपना फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट खेला, मैं बीजिंग ग्रांड प्री गया था, वहाँ सिल्वर मेडल जीता।
फिर मैं बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेज में था, तो 2021 में जब कोविड आया तो मैं ना ही कुछ स्पोर्ट्स खेल पा रहा था, ना ही मैंने कोई एक्सरसाइज कर रहा था, क्योंकि मुझे बेसिक नॉलेज भी नहीं थी कि मुझे क्या करना चाहिए। और मैं शायद एक वक्त था, मैं शायद स्पोर्ट्स छोड़ने ही वाला था, और 2020 में मेरी जॉब लग गई थी, तो मुझे लगा था कि अब नौकरी कर लेनी चाहिए, वही सही रहेगा, इसमें क्या ही करूँगा। बट शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने 2022 में मेरी मुलाकात नवल सर से कराई। नवल सिंह और आदित्य चौधरी मेरे कोच हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, और उन्होंने मुझे बोला कि एक दिन रात को उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सुबह तो आइयो, एक डायरी लेके आइयो, उसमें लिखियो कि एशियन गेम का मेडल जीतेंगे, पैरालंपिक का मेडल जीतेंगे, वर्ल्ड रैंक नंबर 1 बनेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। तो वो मैंने सर को बोला, सर मैंने तो अभी शुरुआत ही करी है, मेरा तो कुछ कहीं पे अभी स्टैंडर्ड ही नहीं है। कह रहे नहीं, मैं करा के रहूँगा तुझे। तो ये उनका भरोसा, कॉन्फिडेंस था जो मुझे आज यहाँ तक लेके आया है। तो 2022 में फिर एशियन गेम्स होने थे, जो कि पोस्टपोन हो गए थे चाइना में कोविड की वजह से। बट हमने ये सोचा कि हम ये नहीं सोचेंगे कि एक साल पोस्टपोन हो गया, हम ये सोचेंगे कि हमें मेहनत करने के लिए एक साल और मिला है। और एशियन गेम्स में लास्ट ईयर जब मैंने डेब्यू करा तो उसमें गोल्ड मेडल जीता, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारी जर्नी के लिए। उसके बाद 2024 में अभी पैरालंपिक्स में मैंने डेब्यू करा और इसमें सिल्वर मेडल जीता है। तो मुझे बेहद खुशी है कि जो सपना हम सब ने देखा था वो आज सच हुआ है। एक्चुअली सबने बात करी अपनी स्टोरीज, अपनी पर्सनल स्टोरीज। आई विल लाइक टू इनलाइटन माय पेरेंट्स स्टोरी। जैसे प्रणव ने कहा कि फादर और पेरेंट्स प्ले अ मेन रोल, एंड एग्जैक्टली इट हैपेंस। अगर पेरेंट्स नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। एंड बीइंग अ गर्ल, और मुझे जो क्लब फुट है प्रॉब्लम है, तो वो बाय बर्थ है। सो इट इज़ लाइक इट इज़ क्योरेबल, बट दैट टाइम मेरे पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं थी उस चीज़ को क्योर करने की, और फाइनेंशियल इशूज़ भी थे उस टाइम पे। बट आई वॉज द ओनली गर्ल, और ऐसा था कि वो नहीं चाहते थे कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने प्रोसीजर से गुजरे, तो दे डोंट वांट टू गो अहेड। तो एक कह सकती हूँ कि हाँ, उन्होंने नज़रअंदाज किया उस चीज़ को, बट इट मेक मी टू दिस पोडियम। एंड उन्होंने जो स्ट्रगल किया, फॉर मी इट इज़ ब्रिलियंट। शायद कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो अपना सेक्रीफाइस नहीं करता हो। मेरे पेरेंट्स ने भी किया, उनकी छोटी छोटी चीज़ें जो सेक्रीफाइस किया है वो आज मुझे यहाँ पे लाके खड़ा किया है, तो आई एम लाइक थैंकफुल टू देम। एंड 2015 में मैंने अपनी जर्नी चालू करी थी। जर्नी वॉज एट स्कूल लेवल ओनली, बट मुझे आगे खेलना था तो मैंने उसको परस्यू किया। परस्यू करने के बाद आई फाइनली गॉट द कोटा फॉर टोक्यो 2020। वहाँ पे दैट टाइम आई वॉज 17 और अराउंड 18 ईयर्स ओनली। तो उस समय वो आग नहीं थी, वो एक जज्बा नहीं था प्रूव करने का, तो समझ नहीं आता था चीज़ें। बट जब वो हार मिली टोक्यो में, व्हेन आई केम 7th इन द फाइनल्स, मुझे पता चला कि वो कैसा महसूस होता है। यहाँ पे सबने कहा एक ब्रेक डाउन होता है, सुसाइड करने का मन करता है, मुझे भी किया, बट नॉट इन दैट लेवल, क्योंकि आई हैव माई कोच, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, तो उन्होंने मुझे एक बात ही बोली थी, इतने करोड़ की आबादी में यू आर द ओनली वन गोइंग दैट। कुछ ही लोग होते हैं, तो यू शुड नॉट बी डिसहार्टेंड। तो एक उम्मीद थी, बट आई टुक 6 months फ्रॉम देयर। बट वो 6 month के बाद कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो जो 22 मैंने कंपटीशन चालू किया था 2022 से अब तक, आई अर्न 20+ मेडल्स इंडिविजुअली। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस किए। हार बहुत देखी है, बट आई एंजॉय एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि जब तक आप हार नहीं देखोगे तो आपको जीत का मजा भी नहीं मिलेगा। तो फाइनली आई गॉट द एशियन मेडल and Paralympic medal also. So I have all the tags, all the medals. So I'm very proud of myself, my parents, my coach, and final thanks to PCI also Foundations and everyone who are supporting us. It's a great thankful to them. Thank you so much. A groundsman, even coaches, physio, masseur, and friends, and also you must be knowing Radhika ji, when I seen the Jaipur, even whole family, Shatrupal, Jaipur, they working like together, family, everyone, they encouraging for athletes. Even I am going on the ground sometime, 10 o'clock, maybe 12 o'clock, but they are available on the first event till the last event.
See, that was the encouragement I seen on the 2017 March in the Jaipur. Now, when that time only 4 medal was won, I was there when there was Paralympic, there was no medal. From that time, I was associated, my friends, everybody supported, JP Singh, Sangman ji, even my lot of friends, they supported for my athlete. Everybody have the different struggles. The struggle, they made them to success. Even lot of, see before athletes, my athletes are dependent to somebody, families, some. Now they are dependent to my athletes. They become reverse. How this happened? See, out of my 84 member contingent, around 62 athletes are crorepati's. See, they winning a medal, cash award, the huge cash award, rewards, job, they're honored. Even my athletes, they're sitting, they see even Neeraj, they told before. This was, see, I am a national champion. I represented 7 times India. Even this is my 7th Olympics. Para sports, they have a very good culture. What is the culture? Good culture. Any athlete, whether losing or winning, they have a supported each other. This was a very good culture. Even just now told Amit Sarawas name, even Dharamveer name. They are all three of same competition, but each other they supported, they made up to success. Once again, Shirdi Sai Baba Trust, the supporting us from very long. ये हमारे एसोसिएशन से एफिलिएट लोग हैं, हमें बहुत खुशी होगी और मैं सत्या जी से, सांगवान जी से, अपने सभी पीसीआई के ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करके और इस खेल को आगे बढ़ाने का काम करें। आप लोग को पता है इतना दिन क्रिकेट ओलंपिक्स में नहीं था। 2028 लॉस एंजलिस में क्रिकेट भी इंक्लूड हो गया। ये हमारा इंडिया का बीसीसीआई से तरफ से पूरा एफर्ट किया। हम लोग भी एफर्ट करा, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया आल्सो आईपीसीसी रिकॉग्निशन लेने के। इस इवेंट को पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से कंप्लीट सपोर्ट रहेगा। You will work together to see देश में कोई भी इवेंट करो, कल्चरल एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स इवेंट है, हम साथ में काम करेंगे, इस देश का नाम भी लेके आएंगे। डेफिनेटली डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन को हमारा तरफ से 100% सपोर्ट। Answer can only come from people who are looking at the future of Indian sports. I want everyone, आपको शायद नहीं पता इसका मतलब क्या है, but I want everyone to give him a big hand. It's a privilege to all of us that PCI has given its consent to support our World Cup cricket for Para in Lucknow, and I am grateful to them that they have given the verbal support and the moral support. And the program which Oshim Bhai and Shirdi Sai Baba Foundation, it is superb, and we have heard the experience of every athlete in a very good way. They have made out their target in their life and they have achieved it, and I found that every player have said that अर्जुन की आँख की तरह टारगेट होता है तो आप अचीव कर सकते हैं, और शिद्दत के साथ जो लगता है पीछे तो कामयाबी मिलती है। तो आपके जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए हैं, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिम एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दिस फेलो, हाउएवर आई एम इम्प्रेस्ड बाय एवरीबॉडी, बट द टू स्टारबर्ड्स, वन इज मिस्टर सुप्रीम कोर्ट एंड अनदर दिस यंग मैन Arvind. So all remarkable, and the young lady
who has also told everything. And this young boy who has done his masters in commerce, okay? From Delhi School of Economics. All privileged guys, they all are the proud of the country, and we are confident that their targets Lord Krishna will bless them for everything. And you are inviting them on 17th? Yes. I think you all are coming to Vrindavan on 17th of November. It's a big program, and they'll be awarded. Their presence will be there. Your presence will be there, and there will be a big program in Vrindavan. And now we are going ahead for World Cup cricket for Para in Lucknow, and this dream of Ashok Chandral and my dream is going to fulfill, and it will be the first of its own kind, the World Cup cricket for Para. Thank you. मेरे सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित हुड्डा, यूनियन पैरा एथलीट। मेरा चलोई गांव से बिलोंग करता हूं और हमारे गांव में बास्केटबॉल का बहुत अच्छा चलन है। बचपन से ही मैंने बास्केटबॉल बहुत खेली हुई है। पर जब टीम में सिलेक्शन का टाइम आया तो कोच ने बताया कि आपका एक हाथ नहीं है। मेरा हाथ बचपन में ही डॉक्टर को ग्लूकोज लगाने की वजह से खराब हो गया था, काटना पड़ा था। वहाँ से पता चला कि मैं बास्केटबॉल नहीं खेल सकता, टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा एक हाथ की वजह से। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि पैरा ओलंपिक के भी गेम होते हैं या पैरा का कोई गेम होता है। तो उसके बाद मैंने अपनी स्टडी जारी रखी, BA की, MA की हुई इकोनॉमिक्स से, और अभी PhD चल रही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से करंट में। तो फिर मैं 2014 में जयपुर घूमने गया हुआ था फैमिली के साथ। वहाँ मुझे देवेंद्र झंझड़िया जी के बारे में पता चला कि पैरा के भी खेल होते हैं और वो मेरे जैसे ही हैं, एक हाथ से हैंडीकैप्ड हैं। तो उसके बाद मैंने वापस रोहतक हरियाणा में आके और अपना जानकारी इकट्ठा की कि कहाँ से गेम होते हैं, कौन कराता है, कैसे क्या है। रोहतक मेरा जीवन स्टेडियम में मैंने ट्रेनिंग शुरू की। उस टाइम पे मैंने डिस्कस थ्रो स्टार्ट किया था। डिस्कस थ्रो मुझे अच्छा लगता था, वो थोड़ा आगे वाला गेम है, स्ट्रेंथ वाला, इसलिए मुझे वो अच्छा लगा था, वो करने लगा। पहले ही नेशनल में मेरा डिस्कस और शॉटपुट में दोनों में गोल्ड मेडल थे विद नेशनल रिकॉर्ड। उसके बाद लगातार 3 साल मेरे डिस्कस में गोल्ड रहा नेशनल में। 2016 ओलंपिक में डिस्कस थ्रो का इवेंट नहीं होता हुआ, ये पीछे से ही काट दिया जाता है किसी कारण से। तो फिर मैंने जेवलिन की ट्रेनिंग स्टार्ट की। जेवलिन में रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। उससे पहले मेरा 1 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया, लेफ्ट हाथ का ही शोल्डर का मांस फट गया। उस कारण मैं रियो ओलंपिक में नहीं जा पाया। फिर दोबारा डिस्कस स्टार्ट की, वर्ल्ड रैंकिंग 1 पे आया, टॉप स्कीम में आया। उसके बाद डिस्कस थ्रो काट दी दोबारा से। फिर मैंने शॉटपुट स्टार्ट किया। शॉटपुट की तैयारी अच्छी चल रही थी। टोक्यो ओलंपिक के टाइम पे अपना वर्ल्ड रैंकिंग 3-4 तक की थ्रो लगा रहा था। फिर मेरा राइट नी का लिगामेंट टूट गया था, एशियन लिगामेंट टूट गया ट्रेनिंग के दौरान ही, ट्रेनिंग करते वक्त, और मुझे उसकी भी ट्रायल नहीं दे पाया, वहाँ से मिस किया। उसके बाद काफ़ी दुखी हुआ, इतने सालों के थे प्रैक्टिस करते हुए, कोई इंटरनेशनल मेडल नहीं आ रहा था। हर जगह क्वालिफाई कर रहा था, इतनी मेहनत कर रहा था। लॉकडाउन में भी मेहनत की, छत पे अपने वेट गिर के पड़ोस में, पर बहुत दुखी हुए उस टाइम पे लिगामेंट टूटने के बाद। फिर उसका ऑपरेशन कराया। मेरे लिए वो अच्छा हुआ कि एशियन गेम 1 साल के लिए पोस्टपोन्ड हो गए और मुझे उसकी तैयारी करने के लिए टाइम मिल गया। ऑपरेशन के बाद मैंने तैयारी की। सत्या सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उस बीच में बातें करते रहते थे कि तू कर लेगा, ऑपरेशन हुआ तो क्या हुआ, और पहले भी और रखा है। प्रैक्टिस की, एशियन गेम में मैंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। वो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने साल की मेहनत का कोई तो इंटरनेशनल मेडल हाथ लगा।